Hello dear UPSC aspirants and welcome to EduTap. So guys, this is part 26 for your comprehension practice passages from the previous years. And guys, in this series we are covering top 1000 questions for your practice for your CSAT exam. So guys, if you are an aspirant, serious aspirant, this is going to be very helpful for your preparation, because in this session we are not going to teach you any basics or concepts. We are just going to practice previous year passages that were asked in the UPSC CSAT exam. So don't forget to like the session and don't forget to subscribe if you're here for the first time. And guys, before we go any further, I would like to inform you about our special courses and ebooks that we have launched for you. So guys, although the links are given in the description of the video, but I'll show you a very simpler way of going about it. So guys, go to your Google or any browser that you use and just type edutap.in, edutap, edutap.in, and press enter and you'll land on our homepage and you'll see all the courses available to you. You have your CSAT courses available. When you click on this, you will land on our on our UPSC CSAT page. You have your test series, and this is a one-stop solution for your exam. This is a master course where you'll find all your concept classes, live classes for all the subjects, quants, reasoning, reading comprehension. Along with all that, you'll have your concept classes, sectional test, full length tests, and mock tests as well for your practice. So this is a game changer for your preparation. And guys, if you want to prepare, we also have special books for you. Guys, if you see, you have a books, title on the top. You click on that and you just choose UPSC CSAT as your book. So guys, you have your 20 full-length test book plus 30 practice tests plus all the previous year questions. So this is a combination of combo of three books that we have compiled for you. Then this is this is a CSAT previous year book wherein you will find all your previous year questions from the year 2019 with the solutions as well and detailed analysis. Then this is a book for only 20 full-length tests plus 30 practice sets for UPSC CSAT exam. And then you have your individual books wherein we have your 30 sectional tests for UPSC, 20 full-length tests for UPSC CSAT 2026 exam. So guys, these are special ebooks available to you. You can also purchase them and use them efficiently for your exam and for your preparation. So guys, the exam is on 25th of May, and I think this is the right time you started preparing for your CSAT exam. Although it's a qualifying exam, but it still is very important. चले गाइस, तो स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको जो मैंने लास्ट वीक होमवर्क पैसेज दिया था उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम मोर पैसेजेस, एंड देन आई विल आल्सो गिव यू अनदर होमवर्क पैसेज जिसका आंसर मुझे आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है. तो चलिए शुरू करते हैं गाइस. तो इसमें गाइस आपको बताना था कि क्या क्रिटिकल मैसेज दिया है पैसेज में. तो पढ़ते हैं गाइस. मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हेल्थ इन टर्म्स uh, of the consequences of unattended heaps of garbage which become home for flies and other vermin. However, there is another aspect that is not well understood, that is what happens when unscientific solid waste management combines with poor drainage and dumping of untreated sewage into drains which are meant to carry storm water during rains. Now the result is choked drains which are full of stagnant water breeding mosquitoes resulting in the spread of waterborne diseases. तो उसने क्या मैसेज दिया है यहाँ पे कि हमारा जो लिंकेज है ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, हमें लगता है सिर्फ कूड़ा ही एक प्रॉब्लम है, लेकिन कूड़े से मल्टीपल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं. जैसे चोक ड्रेन्स होगी, फिर उससे मस्कीटोज आते हैं और फिर उससे बीमारियां फैलती हैं. सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज क्रूशल. तो उसने क्या दिया है गाइस, इन इंडिया द ड्रेनेज नेटवर्क्स आर नॉट सेपरेट फॉर सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर. ये मैसेज दे रहा है वो, एब्सोल्युटली नॉट. Urban local bodies do not have enough resources and legislative authority to deal with the problems of waste management. No. Solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewage networks. Yes. Bad management of solid waste and sewage system by our municipalities is the reason for drinking water. They're not talking about drinking water shortages. So correct answer is option number C. Very well done. जिसने आंसर दिया गया इस comment section में, C is the right choice है. That solid waste management should be integrated with the maintenance of drainage and sewage networks. तभी वो control हो पाएगा, नहीं तो एक तरफ वो accountability कहीं नहीं रहती फिर उसकी वजह से. So दैट वॉज द क्लियर मैसेज. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. चले गाइज, अब हम ये कुछ पैसेजेस करने शुरू किए हम गाइज हमने 2024 एग्जाम से. सो ये 2024 में आए थे और आगे चल के हम 25 के भी सारे पैसेजेस ऐसे ही डिस्कस करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन एवरी वीक ऑन ट्यूसडे. यू विल फाइंड कॉम्प्रिहेंशन सेशन हेयर. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं. पहला उसने एक पैसेज दिया है और हमें बताना है व्हाट इज द
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर, के व्हाट डज द ऑथर वांट टू कन्वे। चलिए तो ये पढ़ के समझ आएगा, आई थिंक स्टैटिक पैसेज है। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज द रियल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसने क्या बोल रहा है वो, कि साइंस की जो हिस्ट्री है ना वो पूरी मैनकाइंड की हिस्ट्री है, वो असली हिस्ट्री वो है। ठीक है, कि जब से हम साइंस हमने यूज़ करना शुरू किया है तब से ही हमें हिस्ट्री की समझ है। इन दिस स्ट्राइकिंग एपिग्राम अ 19th century writer links science with its background. Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. कि भाई एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है जिससे सच्चाई सामने आती है। इन दिस केस इट इज easy to overlook the relations between science and mankind and to treat the former, मतलब साइंस as some abstract third party। हमें लगता है कि हम साइंस और मैनकाइंड को अलग अलग एंटिटीज की तरह समझ सकते हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट ट्रू, which can be sometimes praised for its beneficial influences but frequently and conveniently blamed for the horrors of war। कि हम साइंस को ब्लेम कर देते हैं कि भाई इसने हमें कुछ तो फायदे दिए हैं, लेकिन लड़ाइयाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब साइंस की देन है। साइंस किसकी है? साइंस हमने ही तो बनाई है, तो हम ही हैं, हमने ही बनाया है बॉम्ब, वो साइंस ने कोई अलग से थोड़ी है कोई। तो वो बता रहे कि ह्यूमंस को अलग करके नहीं देखना चाहिए, साइंस वही है जो ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, साइंस एंड मैनकाइंड कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एट मेंस कन्वीनियंस, कि हम अपनी मर्जी से उसको अलग नहीं कर सकते। येट वी हैव सीन दैट इन स्पाइट ऑफ काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंप्रूवमेंट, द ओपनिंग ईयर्स ऑफ द प्रेजेंट पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन हैव बीन डोमिनेटेड बाय इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। बेशक हम कितना इंप्रूव कर सकते थे, लेकिन जब ये नई मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई उसमें सारे ही सिविलाइजेशन लड़ाई कर रहे थे। इज दिस द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस और डज द फॉल्ट लाई एल्सवेयर? कि भाई ये साइंस की प्रोग्रेस का एक इनएविटेबल रिजल्ट है या गलती कहीं और है, मतलब गलती तो हमारे अंदर है, साइंस में कमी थोड़ी है, ये कहना चाह रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर? तो विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। उससे पहले भी तो कर ही रहे थे यार। तो ये तो गलत असम्पशन है कि ह्यूमैनिटी बचती ही नहीं साइंस के बिना। नो, इट इज साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटर्मिन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड, कि हमारी जो फ्यूचर है वो साइंस अल्टीमेटली डिफाइन करेगी। नहीं गई, साइंस नहीं करेगी, यही वो कहना चाह रहा है। हमने साइंस को बनाया तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं। दैट्स नॉट द अजम्पशन। सो ऑप्शन डी, नीदर अजम्पशन 1 नॉर अजम्पशन 2 इज वैलिड हियर। और गाइस इसी पैसेज पे उन्होंने एक क्वेश्चन और दिया था। तो ये 2024 में बहुत सारे मतलब ना लेवल 2 के पैसेजेस आए थे। लेवल 2 मतलब जिनमें दो क्वेश्चंस होते हैं एक ही पैसेज पे। तो इस पे दूसरा क्वेश्चन दिया था, उसने दो असम्पशन दिए हैं फिर से, और बताना इसमें कौन सी वैलिड है इनवैलिड है। द हॉरर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। के ये तो साइंस का देन है ही, मतलब साइंस की कि जो भी हम आज लड़ाइयाँ देख रहे हैं ये सारी साइंस की वजह से है। नहीं वो कह रहे, वो ह्यूमैनिटी की वजह से, वो ये कहना चाह रहा था। हमने बनाया उसको, साइंस ने थोड़ी बनाया अलग से कोई कमरे में बैठ के, हमने ही किया उसको यूज़। और सेकंड, द एस्पेक्ट ऑफ ट्रूथ लाइकली टू बी ओवरलुक्ड इज दैट साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। यस, कि ये हम भूल जाते हैं कि साइंस वही है जो हमने उसको बनाया। तो सेकंड असम्पशन इज वैलिड, फर्स्ट इज नॉट। सो ऑप्शन बी वाज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से गाइस आपको पैसेजेस दिए जाते हैं जिनको हमें ब्रेक डाउन करके समझना होता है कि क्या बात कही गई है वहाँ पर, क्या ऑथर ने कहना चाहा है, और उसके बेसिस पे फिर हम अपने जो आंसर्स हैं, जो अपने क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए गाइस एक और पैसेज सॉल्व करके देखते हैं। इस पे भी दो क्वेश्चन है। हाँ जी गाइस, इस पे भी दो क्वेश्चन दिए हैं उसने, तो पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या आंसर बनता है। तो उसने क्या बोला है, पहला क्वेश्चन दिया उसने, व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट। तो हमें जब हम नए लोगों से मिलते हैं, जब हम ट्रैवल करते हैं, तो हम किस चीज़ के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखते हैं। तो पढ़ते हैं गाइस, देखते हैं। Only with long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries and what is parochial and what is universal in his choice। तो भाई जब एक मर्चेंट जो होता है, जब वो हजारों जगह घूम चुका होता है, जहाँ ऐसी जगह जहाँ उनकी लैंग्वेज बोली भी नहीं जाती, तब जाके मर्चेंट को मतलब जो ट्रेडर है, मर्चेंट है, उसको पता चलता है कि भाई जो वो लेके घूम रहा है उसकी वर्थ क्या है, क्या उसका नैरो माइंडेडनेस है, और क्या उसकी चॉइस में यूनिवर्सल चीज़ें हैं। Such delicate goods as justice, love, and honor, courtesy, and indeed all the things we care for are valid everywhere, but they are variously molded and often differently handled, and sometimes nearly unrecognizable if you meet them in a foreign land। तो ऐसी जस्टिस, लव एंड ऑनर, कर्टसी, ये चीज़ें हर जगह होती हैं, लेकिन मोल्ड कर दिया जाता है। अगर आप कहीं फॉरेन लैंड में भी जाओ, वहाँ भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। एंड द आर्ट ऑफ लर्निंग fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among their fellows। और घूमने का मतलब ट्रैवल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्या फंडामेंटल कॉमन वैल्यू समझ जाते हो, और आपको ये समझ आता है कि क्या पैरोकियल है
और क्या यूनिवर्सल है। यही फ़ायदा होता है जब आप ट्रेड करते हो, ट्रैवल करते हो और दुनिया भर में घूम घूम के लोगों से मिलते हो। सो व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, नो। कम्युनिटीज एंड नेशनलिटीज, नो। लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, यस, जैसे हम कह रहे थे, एंड फ्रेंड्स एंड फोर्स, नहीं। सो करेक्ट आंसर इज यू लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इसी पैसेज पे ही है, उसने दो अजम्पशन दिए हैं, तीन अजम्पशन दिए, और मैं बताने कौन सी अजम्पशन वैलिड है इनवैलिड है। तो पहली अजम्पशन है ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। बिल्कुल सही बात है कि भाई हम ह्यूमंस को समझते हैं जब ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल हेल्प्स दोज हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, यस, उसने बोला भी है, ये देखो। Fundamental common values is perhaps the greatest gain of travel to those who wish to live at ease among other values. The second भी ठीक है. Third, a person with long experience in travel can resolve differences amongst people. कि लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म कर सकता है। नहीं गाइज, ये ना तो मेंशन है, वो डिफरेंशिएट करना सीखता है कि क्या कॉमन है और क्या यूनिवर्सल है, मतलब क्या लोकल है और क्या यूनिवर्सल है, लेकिन मतलब लोगों को समझता है, लेकिन डिफरेंसेस रिजॉल्व कर पाना ये कोई मतलब assumption वैलिड नहीं लग रहा मुझे। तो आई थिंक 1 and 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए वाज योर करेक्ट आंसर। तो गाइज थर्ड गलत था, तो थर्ड गलत था, तो आप यहीं से देख लो, ये तीनों ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं आपके, और आपके पास एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन 1, विच इज़ 1 and 2 ओनली। तो गाइज ऐसे बड़े ही केयरफुली एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके हमें अपने पैसेजेस को सॉल्व करना होता है और फिर उनके आंसर तक पहुंचना होता है। चले गाइज, अब एंड में है गाइज आपका ये होमवर्क पैसेज। ये होमवर्क पैसेज है, इसका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं पैसेज आपके लिए पढ़ के जाता हूँ, ऑप्शन पढ़ देता हूँ, आपको बस आंसर देना है आपके अकॉर्डिंग क्या सही आंसर है। लेट्स सी कि आप जिस माइंडसेट से इनको सॉल्व कर रहे हो क्या वो ठीक भी है या कुछ और डिफरेंट करना चाहिए हमें। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट साइंस, कि ऑथर की साइंस के बारे में क्या थिंकिंग है, ये हमें बताना है। चलिए पढ़ते हैं गाइज। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ दैट साइंस हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ। द आइडिया वुड नॉट हैव अकर्ड टू न्यूटन और गलीलियो. They thought of science as an account of the world as it is, and the only responsibility that they acknowledged was to tell the truth. The idea that science is a social enterprise is modern, and it begins at the Industrial Revolution. We are surprised that we cannot trace a social sense further back because we nurse the illusion that the Industrial Revolution ended a golden age. So, क्या कहना है ऑथर का साइंस के बारे में भी पढ़ के क्या समझ आ रहा है। ऑप्शन से कही, साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ साइंटिस्ट्स, साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज मेड पॉसिबल बाय द एडवांसमेंट्स इन साइंस, साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। सो ऑथर का क्या कहना है साइंस के बारे में बताइए, आपको क्या लग रहा है व्हिच इज द राइट ऑप्शन। चले गए, तो ये था आपका आज का कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेशन, और आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है एग्जाम में। चले गए, बट बिफोर आई रैप अप द सेशन गाइज, आई वुड अगेन लाइक टू एम्फसाइज, आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज में कैसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ गाइज। आपने बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है, और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे। पहले तो गाइज ऊपर ही आपको यहाँ पे बुक्स दिख जाएंगी, तो यहाँ बुक्स पे क्लिक कीजिए, और नीचे आएंगे तो गाइज आपको यूपीएससी सीसैट की बुक्स दिखेंगे, जिसमें आपको ये बुक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले गाइज आपकी सीसैट की 20 फुल एंड टेस्ट की इंडिविजुअल बुक है। ये आपका 30 प्रैक्टिस पेपर्स की इंडिविजुअल बुक है। फिर उसके बाद गाइस इसी में आपको अलग से कॉम्बिनेशन मिलते हैं, जैसे 20 फुल एंड टेस्ट प्लस 30 प्रैक्टिस सेट्स फॉर सी सेट, ये अलग से कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको 3 बुक्स का कॉम्बो मिलता है, 20 फुल एंड टेस्ट वाले जिसमें 1600 एमसीक्यूज हैं, 30 प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें 400 एमसीक्यूज हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से 2025 तक जो सॉल्व मिलते हैं आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और ये अकेले पीवाईक्यूज की बुक है सी सेट की, विद सॉल्यूशन एंड एनालिसिस एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर। तो गाइस आप ये बुक्स परचेज कर सकते हैं। दे आर वेरी चीप एंड दे आर वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। एंड एट द सेम टाइम गाइज आपको अगर हमारे और कोर्सेज से जुड़ना है तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ गाइज। आप यहीं पे मेन पेज पे ही आपको यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे, नीचे यहाँ पे सीसैट कोर्सेज हैं, इस पर क्लिक कीजिए और नीचे आइए, और ये रहे आपके कोर्सेज जो अवेलेबल हैं गाइज। आपके पास आपको टेस्ट सीरीज़ है सबसे पहले, जिसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिलते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। वैलिडिटी पूरे 1 साल है इसके, और ये आपको 81% डिस्काउंट पे मिल रही है। और गाइज ये है हमारा मास्टर कोर्स, जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मिलेंगी, और
मॉक टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, ये सब आपको मिलेगा पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, राइट। और इस पे भी अभी हम फ्लैट 81% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज MAR फॉर मार्च, MAR 81. So MAR 81 is your coupon code to avail 81% discount on these courses. So come join us, streamline your preparation and make your journey constructive and fruitful for yourself. Now guys, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है और कोई क्वेरी है regarding our courses or anything at all, you can always call us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. That's our official email ID. So thank you so much guys. I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So all the very best once again, and happy learning to all of you. See you again next week with more such passages to discuss, and we'll keep on coming up with more such sessions to help you in your preparation and in your journey ahead. So all the very best and have a good day. Bye bye. Take care.